Good morning, dear students. So today we are going to discuss chapter number 9 from the book Honeysuckle, that is desert animals. So before you read, can you name some desert areas in India and the world? Yes, you have to find out this desert area in India and as well as in the world. There are many deserts in the world: Sahara Desert, Thar Desert, Gobi Desert, etc., etc. So who do you think lives in such areas? Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. So, हम सबको पता है desert areas, they are the driest places on the earth and sometimes for even years or for quite a long time, there is no rainfall in the desert areas, right? But even the desert animals cannot survive without water. So if there is no rainfall, there is obviously scarcity of water. So how do you think the animals over there in the desert, how do they live? Even animals cannot survive without water. As we people, human beings, those who are living in hilly areas or in plain areas, we cannot live without water. In the same way, desert animals also cannot live without water. So how do they live there? Or for long periods in the scorching sun. See the meaning of scorching sun. Scorching has been given in your book. That is very hot. मीन्स कि बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी होती है. जहां पर बेटा बारिश नहीं होती, ऑब्वियसली वहां पर गर्मी बहुत ही होती है. और क्या कहते हैं कि बारिश नहीं होने की वजह से, एंड दीज प्लेसेस आर ड्राई प्लेसेस. सो वो उस गर्मी में कैसे रहते हैं? सो दे हैव हैड टू फाइंड different ways of coping with the harsh conditions, because the conditions, the climate, the weather over there is really very harsh. Harsh means unpleasantly rough. जब बारिश नहीं होनी, वहां ड्राई है सब कुछ, आपको पानी की स्कार्सिटी है, सो it is really very difficult to cope up with the conditions. Cope up means to deal with the conditions. So they have found different ways to live there. Desert animals, they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. Means कि उन harsh conditions के साथ, उन rough conditions के साथ उन्होंने deal करने के लिए different तरीके निकाल लिए हैं. So we'll read about many animals in this chapter. So first example of gurbuls has been given. For example, gurbuls, see the meaning of gurbuls: mouse like desert rodents with long hind legs. उसकी जो हिंड लेग्स होती हैं, दोज आर क्वाइट लॉन्ग, और ये माउस के जैसा ही कुछ कुछ नजर आता है. एंड दिस इज अ रॉडेंट. आपको पता है रॉडेंट कौन से होते हैं? ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. बरोज मीन्स जो हम अर्थ में होल डिग कर लेते हैं, बरोज बना लेते हैं. जैसे रैबिट बरो में रहता है, गर्बिल बरोज में रहते हैं. In the same way, mouse, rats, they all live in burrows. So जो burrows होती हैं, they are cool because this is underground part. ये underground होता है, धरती के नीचे होता है. So these areas, these burrows are not hot as compared to the outside. And strange insects called darkling beetles. तो बेटा वो अपनी गर्मी से, सॉरी, गर्बिल जो है गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? दे जस्ट गो टू द underground burrows and they can survive over there. Now the turn is of next animal, that is beetles. beetles भी सबको पता है, सबने देखे हैं, कार्टून कैरेक्टर्स भी जब हम देखते हैं. So the children over there, they are just interested in catching the beetles. So strange insects called darkling beetles are experts. They are experts at catching drops of moisture. आपको पता है हवा में हमेशा moisture रहता है. हमारी जो एयर है, it always contains some moisture. So ये एक्सपर्ट होते हैं उन मॉइस्चर की ड्रॉप्स को कैच करने के लिए ऑन देयर लेग्स. सो जो हवा में मॉइस्चर है,
the drops of moisture, they just are expert in catching those drops on their legs. तो उनकी legs पर वो drops आ गई, then lifting them into the air. फिर वो अपनी टांगों से क्या करते हैं, उसको हवा में उछालते हैं, lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. So ultimately those drops, they just float downward into their mouths. पहले वो legs पर drops collect करते हैं, फिर उसको हवा में उछालते हैं, and then those drops just directly come into their mouths. They are not expert in catching those drops in directly in their mouth. होगा कुछ उनके legs में ऐसा कोई system होगा कि जो उनकी legs हैं, only those can carry the moisture. तो जब उनकी legs पर moisture पहुंच गया तो उसको मुंह में कैसे पहुंचाना है, क्योंकि moisture ही है जिसमें थोड़ा सा पानी रहता है, थोड़ा moisture आपको पता ही है, जो थोड़ा wet damp सी चीज होती है, तो वो उसको अपने मुंह में डालकर जो पानी की scarcity है उसकी कमी को पूरा करते हैं. सो लेग्स पर आया, लेग से हवा में उछाला और फिर उसको अपने मुंह में डाल दिया. आप भी कभी कभी ऐसा करते हो ना, यू टेक अ पीनट और यू टेक अ पॉपकॉर्न एंड देन यू जस्ट लिफ्ट इट इनटू द एयर एंड देन यू ट्राई टू कैच इन योर माउथ. करते हो ना आप भी ऐसा. इन द सेम वे बीटल्स डू द सेम थिंग. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. So what are sand dunes? See, the meaning has been given. Heaps of sand formed by the wind. जो हवा से जो रेत के ढेर बन जाते हैं, heap means ढेर, वो रेत के टीले बन जाते हैं, जो पहाड़ जो नहीं होते छोटे छोटे वैसे बन जाते हैं. So the writer is saying here, not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डेजर्ट्स में आपको सैंड ड्यून्स ही मिले. एंडलेस सीज मींस जिसका पार ना हो, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि हर डेजर्ट्स में आपको वही सैंड ड्यून्स के पहाड़ मिलेंगे. सम आर रॉकी और पैबली. सी द मीनिंग ऑफ पैबली इज स्टोनी. रॉक्स क्या होती हैं, चट्टाने. पेबल्स क्या होते हैं, स्टोन्स. सो कुछ डेजर्ट्स दीज आर रॉकी and some deserts are pebbly also and dotted with small bushes. Dotted with means scattered. जो bushes हैं वहां पर scattered हुई होती हैं, मतलब कि हर जगह आपको bushes ही नजर आएंगी, small bushes, झाड़ियां. While others are sprinkled with colorful flowers during the spring. हमारे जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, दैट इज जहां रेत हो, रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं. हिंदी में मारुस्थल कहते हैं, पंजाबी में मरुथल कहते हैं. तो वो हमारे जो दिमाग में वही इमेज आती है कि वही होगा, बट नो, इट इज नॉट ऑलवेज देयर. कुछ रॉकी हैं, कुछ पैबली हैं, कुछ में बुशीज हैं और कुछ तो कलरफुल फ्लावर्स के साथ ढके रहते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में. There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. We even cannot think of the species of snakes. Now see here, 2300 से ज्यादा species हैं snakes की around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. Now there is difference in their heights also. Some snakes are just of 15 centimeters and some they are just more than 11 meters. तो आपको जरा इसको कन्वर्ट करना होगा. 11 मीटर्स बहुत ज्यादा हाइट होती है, काफी फीट इसमें आ जाते हैं. तो मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. yes, it is true, we are afraid of snakes, we are scared of snakes, but it is very much true that most of the snakes, they are just quite harmless. वो हमें कोई harm नहीं पहुंचाते. But there are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. But ऐसा भी है कि कुछ इतने ज्यादा जहरीले होते हैं. Poisonous means जिनमें जहर भरा हो, जहरीले, इतने ज्यादा जहरीले होते हैं that they can kill a human being, कि वो एक human being को भी मार सकते हैं just with one bite. एक ही sting से, एक ही वो bite करेंगे तो वो इंसान खत्म. Most snakes lay eggs. बहुत जो snakes हैं, they just give eggs, they lay eggs.
but there are many which give birth to their young. But कुछ ह्यूमन बीइंग्स की तरह ये अपने यंग वंस को बर्थ भी देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका की बात करते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू read about the deserts as a whole. We are not just talking about Indian desert, we are just talking about the deserts जो कि हमारी पूरी दुनिया में मौजूद है. तो यहाँ हम अमेरिका के डेजर्ट की बात कर रहे हैं, which is dry and rocky. Lives a rather evil looking snake. Evil looking snake means बहुत डरावना, देखने में बहुत डरावना वहां एक स्नेक रहता है with a very bad reputation, जिसकी रेपुटेशन भी बहुत खराब है. मतलब कि उसके बारे में सुन के ही आपको बहुत बुरा लगता है. Why so? Just read it. Its frightening rattle can be heard. Frightening means डराने वाली. Frightening क्या होता है? The thing which can scare us. Rattle is short, sharp, knocking sounds. जो वो sounds निकालते हैं, क्योंकि इनका नाम ही rattler है, rattling snakes है, तो इसकी जो frightening rattle होती है, डराने वाली जो शॉर्ट और शार्प और नॉकिंग साउंड आती है, कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. कितनी दूर तक उसकी आवाज वो सुन सकती है. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. लाइटनिंग क्या होती है बेटा? जब आसमान में बिजली चमकती है, व्हेन देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई बिफोर रेन, तो उसकी स्पीड के साथ ये स्ट्राइक कर सकता है. इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है और इतनी ऊंची इसकी आवाज है. बट द रेटल स्नेक और रेटलर, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, दीज आर ऑल्सो नोन एज रेटल स्नेक और रेटलर, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. जैसे अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, सो ये भी ऐसा ही एक जानवर है. इट जस्ट प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. इसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि ये लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता है जहां तक कर सके. इफ इट पॉसिबली कैन. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट. अपराइट मीन्स अपनी टेल को ऊंचा खड़ा कर लेना. अपनी टेल को ऊंचा खड़ा कर लेना. एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड. और जो पूंछ का एंड वाला पार्ट होता है उसको ये रेटल करता है, मतलब कि उस पूंछ में से ये उस तरह की नॉकिंग साउंड्स निकालता है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. इंट्रूडर होता है द वन हु डिस्टर्ब्स यू विदाउट योर परमिशन. The one who disturbs you without your permission, that person is known as intruder. तो जहां यहां उसके लिए इंट्रूडर कौन है? ह्यूमन बींग्स, पर्सन्स. सो जब इसको लगता है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, जब उसको लगता है कि कोई मेरे में दखल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, सो व्हाट डज इट डू? इट जस्ट अपराइट्स इट्स टेल. ये अपनी टेल को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेता है, फिर उस टेल में से आवाजें निकालता है. और अभी हमने पढ़ा कि जो इसकी आवाज होती है, इट कैन बी हर्ड फ्रॉम 30 मीटर्स अवे. ये 30 मीटर से भी ज्यादा दूर से सुनी जा सकती है. वो इसलिए ऐसा करता है ताकि जो मेरा इंट्रूडर है मेरी टेल की आवाज सुन के यहां से भाग जाए. ओके, दैट इज द रीजन इट डज सो. However, if its warnings are ignored, so this is a kind of warning for the intruder. ये एक तरह की वार्निंग होती है उस इंट्रूडर के लिए कि उसके पास ना आए, उसको डिस्टर्ब नहीं करे. And it feels threatened, it will coil ready to bite. और जब इसको लगता है कि इसको डर लग रहा है कि इसको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, so what does it do? It coils itself. कॉइल क्या होता है? लूप्स बना लेना. हम सबको पता है सांप कैसे बैठते हैं, ऐसे गोल गोल लूप बनाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं. इट इज रेडी टू बाइट. और ये उस समय रेडी होता है बाइट करने के लिए. So these are the warnings, these are the symptoms for us. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. पर
हैरानी वाली बात यह है कि इट इटसेल्फ कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ इट्स रैटलिंग. Its tail makes a lot of rattle, but it itself cannot hear that rattle. सबको पता है कि ये कौन सी आवाज सुन सकते हैं? Snakes, they cannot, they cannot hear you properly, but they can just feel the vibration in the ground. तो जो धरती पर वाइब्रेशन होती है उसी की हेल्प से वो उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को फॉलो करते हैं एंड देन दे कैन फॉलो दैट पर्सन. पर ये आवाज नहीं सुन सकते. इसकी जो पूंछ अपनी आवाज करती है वो नहीं सुन सकते. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. हाँ जी, सेम थिंग जो भी मैंने आपको कहा. वैसे ये नहीं सुन सकते हैं, अगर आप इनके सामने कोई बात करो या वैसे करो इनको नहीं पता चलेगा, but it can feel the vibration through the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement. तो इसके पास से अगर कोई पर्सन निकल के जाता है, चल के जाता है, so it can just feel the movement of that person. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. But इसके आगे अगर आप खड़े होके जितना मर्जी जोर से चिल्ला लो, it cannot hear you. Rattlesnakes are very common and widespread animals. तो ये बड़े ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं. वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा फैले हुए, दुनिया के हर भाग में, हर कोने में, हर कॉर्नर में फैले हुए. लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना. तो हमें उन्होंने उनकी पूरी उसकी बता दी है, एरिया बता दिया है कहां से कहां तक मिलते हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे. प्रे होता है शिकार. इनका शिकार कौन रहते हैं बेटा? ये किसको खाते हैं, किसका शिकार करते हैं? दिस इज इंक्लूडिंग माइस. माइस मीन्स चूहे. वोल्स, सी वोल्स आर स्मॉल प्लांट ईटिंग rodents. ये भी rodents ही हैं, माउस और रैट की तरह. रैट्स. चिपमंक्स. चिपमंक्स स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स. तो चिपमंक्स क्या है? स्मॉल स्क्विरल्स होती हैं. तो इनका शिकार कौन कौन बनता है? माइस हैं, वोल्स हैं, रैट्स हैं, चिपमंक्स हैं एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. और जो बाकी के भी छोटे छोटे जानवर होते हैं ये उनका शिकार करता है. रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद विनोम. विनोम होता है पॉइजन, जहर. ठीक है जी, आप ये सिनोनिम याद रखोगे. पॉइजन का सिनोनिम है विनोम. ठीक है जी. तो ये अपने प्रे को अपने जहर से मारते हैं. उसको काट लिया, उसके अंदर जहर चला गया एंड दैट एनिमल इज डेड. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. तो यहाँ हम पर्टिकुलरली रेटल स्नेक के बारे में बात करते हैं. सो सब स्नेक्स की तरह, आपको पता है स्नेक्स जो हैं वो बाइट नहीं करते हैं. यू नो दिस थिंग वेरी वेल. इनके दांत नहीं तो वो बाइट नहीं करते हैं. व्हाट डू? दे जस्ट स्वेलो द प्रे एज अ होल. स्वेलो होता है निगलना, गले के अंदर कर लेना. तो उन्होंने अपना शिकार पकड़ा, उसको मुंह में डाला और उसको जिंदा ही बिना चबाए वो अंदर निगल लेते हैं. सो लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. पूरे का पूरा उसको अंदर ऐसे ही निगल लेते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक. देयर आर सम स्नेक्स हु हैव टू ईट मोर देन वंस. उनको एक वीक में एक बार से ज्यादा खाना पड़ता है. एंड सम सच एज द लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. बट देखो कितना अजूबा है, कितनी हैरानी वाली बात है कि जो बहुत ही लंबे स्नेक्स होते हैं, पाइथन सबको पता है कि बहुत ही बड़ा स्नेक है, तो दीज कैन लिव फॉर अ ईयर और इवन मोर देन दैट विदाउट ईटिंग. ये एक साल से ज्यादा, एक साल में एक बार खाते हैं या उससे भी ज्यादा टाइम निकल जाता है जब वो एक बार ही खाते हैं. एंड इवन देन दे कैन सर्वाइव. दैट इज व्हाई दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट एरियाज. उनकी भूख ही उस टाइम में मिट जाती है. वो शिकार ही इतना बड़ा करते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं एक ही बार में कि दैट दे नीड नॉट टू ईट फॉर अ ईयर और मोर देन अ ईयर. राइट? Mongooses like to hunt together.
मॉनगूज क्या होते हैं? नेवला। नेवला जो सांप का दुश्मन होता है पक्का। आपने बहुत बार सुना होगा सांप और नेवले की लड़ाई, fight between a snake and mongoose. So mongooses like to hunt together. Hunt होता है शिकार करना, and together is इकट्ठे, तो वो ग्रुप्स में शिकार करते हैं. They do not go for hunting alone, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Lookout means search, and predator means the meaning has been given in your books. Predator, an animal naturally preying on others. तो वो जो अपने प्रीडेटर्स हैं उसको अपने आस पास ही खोजने की कोशिश करते हैं, मतलब दूर नहीं जाते. दे जस्ट लुक आउट फॉर अ डेंजरस प्रीडेटर नियर बाय, अपने पास ही. Poking their noses into holes. Poking means inserting. What do? They just insert their noses into the holes, overturning rocks with their paws. Paws क्या होता है? पंजे. जो rocks होती हैं उसको overturn करना, उसको उछल इधर उधर कर देना, इस आशा में कि उस रॉक के अंदर शायद उनको कोई अपना खाने के लिए कोई प्रेडेटर मिल जाए. एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज. क्लॉज अगेन उनके जो पैरों के पंजे होते हैं उसके साथ ग्राउंड को स्क्रैच करना, ताकि ग्राउंड को स्क्रैच करके अंदर कुछ अंडरग्राउंड जो छोटे एनिमल्स हैं या जो छुपे हुए हैं, रॉडेंट्स छुपे हुए हैं, दे कैन फाइंड देम. Banded mongooses are very amusing animals to watch. Banded mongooses means this is a species of mongooses जिसको हम banded mongooses बोलते हैं. ये शायद अमेरिका की तरफ ही मिलते हैं. The mongooses which are known as banded mongooses. So these are very amusing. Amusing means entertaining, जो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगे. These are really amusing to watch. इनको देखना बड़ा ही अच्छा लगता है. When they overturn the rocks with their paws, when they insert their noses into the holes, and when they scratch the ground with their sharp claws. A common sight in many parts of Africa. तो अफ्रीका में बहुत कॉमनली क्या देखने को मिलता है? They travel in groups of about 20. ये 20 के ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं. How many are there in one go? Almost 20 mongooses are there in one go to forage for beetles. Forage means search for food. See, the meaning of forage has been given in your books. It is search for food. So they just travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. अपना खाना अपने प्रेडेटर्स ढूंढने के लिए ये 20 के ग्रुप्स में निकलते हैं, ताकि वो छोटी बीटल्स, मिलीपेड्स और जो और छोटे छोटे जानवर हैं उनको पकड़ सके. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. Obviously, as we already read that they like to hunt together, but they keep in touch with each other. पर वो एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं. जब भी वो out of sight हो जाते हैं, whenever they go out of sight, so how do they come together? They just try to twitter. Twitter means repeated sounds. Whenever they go out of sight behind rocks or bushes. कई बार अपना हंटिंग करते करते जब वो रॉक्स को ओवरटर्न करते हैं या बुशेस के पीछे जाते अपना शिकार ढूंढने के लिए, अगर वो एक दूसरे से बिछड़ भी जाएं, सो हाउ डू दे ट्राई टू कम क्लोजर? दे जस्ट ट्राई टू कॉल ईच अदर बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. ट्विटरिंग मीन्स रिपीटेड साउंड्स. तो वो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, एंड दे जस्ट कम टुगेदर. ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर. ये हमेशा आने वाले खतरे को भांप लेते हैं, उसके लिए अलर्ट रहते हैं. दे जस्ट लुक आउट फॉर डेंजर. दे आर अलर्ट फॉर इट्स डेंजर. हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स. हॉक्स हैं, ईगल्स हैं, लार्ज स्नेक्स हैं, इनसे इनको खतरा रहता है बिकॉज ये सब इसके दुश्मन हैं. ईगल से भी इनकी लड़ाई होती है, हॉक से भी होती है, और लार्ज स्नेक से तो होती है. दे वॉर्न वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल. तो एक दूसरे को इन्होंने एक स्पेशल साइन लैंग्वेज रखी हुई है, अलार्म क्लॉक है, जिससे एक दूसरे को ये वॉर्न कर देते हैं कि दैट देयर इज डेंजर. इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. सस्पिशियस होता है जिस पर शक किया जा सके. अगर उनको लगता है कि कोई शक करने वाली चीज है, वो उस शक सस्पिशियस थिंग को इफ दे कैन फील दैट, इफ दे कैन स्पॉट दैट. स्पॉट होता है ढूंढ लेना.
या उनको मिल जाना. अगर वो किसी suspicious thing को ढूंढ लेते हैं, then they warn one another with a special alarm call. That is their speciality. They hunt together. अगर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो even then they come together with the twittering sound, and if they feel any suspicion, if they feel any danger, they just warn one another with a special alarm call. So thoda sa reh gaya chapter, that we'll continue to tomorrow. So you will just read the questions given at the back of the chapter, and tomorrow we will finish our chapter and we'll also discuss the question answers. I hope till now whatever we have read, it is clear to you. Thank you so much, beta.